So far we have discussed about the basics of Python. So we have discussed about the keywords and how variables are being defined, how values to be taken from user, and how we can convert different values into another data type. We have seen all these things. Apart from that, we have seen the operators also in last class. So in last class we saw the arithmetic operator, then conditional operator, and logical operator, bitwise operator, assignment operator, and membership operator. We have seen all these things. Now today we are going to see the control flow. Okay, now control flow is something very important in terms of any kind of programming. It's not just the Python programming, it's about any kind of programming you go. This is the main part for any kind of programming. Right. So, because this is a control flow and this is the most logical part where you have to apply your mind, because in most of the things you have to just remember that this is the logical operator, or this is the conditional operator, or this is the data type, or these are the rules, or this is the input and this is the output statement. Those things you have to remember. But in the conditional structure, in the conditional part, you have to apply the logic. Just the mugging up the concept will not work over here. And that is the reason this part is considered as most of the questions in the interviews as well. इंटरव्यू में आप जाओगे तो वहां पे भी आपसे 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कंट्रोल फ्लोज पे ही पूछे जाएंगे, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ही पूछे जाएंगे. राइट. सो let's start with the control flows. So in control flows there are two kind of control flows are there. One is the control flow that is just for one repetition of a code, right? And another flow is where you are repeating a similar code again and again, right? So let me start file for a new file for you. So here I'm going to write h3 control control flows in Python. Okay, and in control flow in Python there are number one is h4. So number one is single repetition repetition of code on satisfying some condition. ओके. और जो इसमें दूसरा होता है that is multiple rep- repetition of code on satisfying some condition. ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं इसमें. एक है कि हमने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करी और वहाँ पे हमने वो सेटिस्फाइंग सम कंडीशन. तो एक हमने कंडीशन सेटिस्फाई करी और एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे हमने एग्जीक्यूट कराया. तो इसमें होता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट होते हैं. तो इफ एंड रिलेटेड स्टेटमेंट्स. तो इफ से जो भी रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं. और इसमें जो होता है इसमें हम यहाँ पे लूप्स को यूज करते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम नया ऐड कर लेते हैं. ठीक है. अब मान लो यहाँ पे हमारे पास इफ कंडीशंस है. इफ कंडीशन. सो इफ कंडीशन क्या करती है. इफ कंडीशन में सपोज हमारे पास ओके
सो अब सपोज हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है वेर वन इज इक्वल टू 12 एंड वेर टू इज इक्वल टू 15, राइट। ये दो हमने यहाँ पे ले लिए। तो अब यहाँ पे सिंगल रिपीटिशन ऑफ कोड क्या है? सिंगल रिपीटिशन ऑफ कोड ऑन सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। अगर यहाँ पे हम सिंगल रिपीटिशन की बात करते हैं तो हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे ये कोड लिखा, तो ये जब इसको हम रन कराएंगे तो ये वाला एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो जितने भी कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे एक बार ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, राइट, कंडीशन हमने क्या लगाई? फॉर एग्जाम्पल, इफ वेर वन इज ग्रेटर देन वेर टू, राइट। तो अब यहाँ पे हमने दिया, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया कोलन के बाद, तब इसने हमें फर्स्ट कॉलम में लाके नहीं दिया, हमें सीधे पांचवें कॉलम पे लाके खड़ा किया। क्यों? क्योंकि नाउ दिस इज आस्किंग फॉर एन इंडेंटेशन, राइट। तो इंडेंटेशन को हमें फॉलो करना होगा जब भी हम इस तरह की चीजें लगाएंगे, तभी ये सही वर्क करेंगे, अदरवाइज पाइथन एरर रेज करेगा। अब यहाँ पे हमने दिया प्रिंट where one is bigger than where two, राइट। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कराते हैं इसको, तो ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है, और जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। बट ऐसा सीन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, वन रिटर्न नहीं करेगा, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, हमने इसको रन कराया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कोई भी आउटपुट हमें प्रिंट करके नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। सर एरर भी नहीं दिखाता? बिल्कुल एरर भी नहीं दिखाएगा। एरर क्यों दिखाएगा यहाँ पे? हाँ, एरर तब दिखाता है जब आपकी सिंटैक्टिकल कोई इशू होता है, सिंटैक्स का कोई इशू होता है, ओके। ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स का कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे एरर भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ अब यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि चलो वैर वन वैर टू से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, लेकिन कुछ तो हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन होता है इफ, फिर दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमने दिया वेर वन इज ग्रेटर देन वेर टू, तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब ये प्रिंट वेर वेर वन इज वेर वन इज बिगर देन वेर टू। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये प्रिंट करेगा, एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा प्रिंट वेर वन इज नॉट बिगर देन वेर टू, ओके। अब हम इसको यहाँ पे जब रन कराएंगे तो यहाँ पे अब देखो ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया, क्योंकि अब इसको पता है कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट जरूर होगा, और फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। और सर ऊपर भी लिख दे ये, मतलब क्या? मैंने ट्रू वाली कंडीशन लिख दे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा ना? कहाँ पे लिख दें? फर्स्ट वाले में आपने यहाँ लिखा है ना, वेर वन ग्रेटर देन वेर टू। इस वाले में? हाँ, इस वाले में। हाँ हाँ, वो कहीं भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बस अलग से एग्जाम्पल हाँ। करके बताया जिससे आप इसको बाद में कोरिलेट कर पाओगे। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ना, तो
तो जिससे आप इसको बाद में रेफर करो, इसलिए मैं हर चीज अलग अलग लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, सर। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अलग लिख दिया। तो अभी क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम यहाँ पे सपोज 18 कर देते हैं, हमने इसको 18 किया, तो अब देखो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है और इसमें भी एग्जीक्यूट होके ये हमें आउटपुट प्रिंट कर रहा है, आउटपुट हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। अगर हम इसको 25 कर देते हैं तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा, ये वाला पार्ट आउटपुट एल्स वाला आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है और यहाँ पे एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफ एंड एल्स। ओके, अब इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे इफ एल इफ। ओके, तो इसको मोस्टली बोला जाता है इफ एल्स इफ देन लास्ट में एल्स। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन पे को चेक करना है, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तो तीसरी कंडीशन को चेक करना है, तीसरी कंडीशन फॉल्स होती है तो चौथी कंडीशन को चेक करना है। और जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब कुछ भी नहीं होता, तो फिर हमें एक लास्ट ऑप्शन देना होता है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इफ एलिफ ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे अब सपोज हमारे पास अम, यहाँ पे है मार्क्स। ओके, मार्क्स इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दे दिया कि इसके मार्क्स आए हैं 45। ओके, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया गया, तो यहाँ पे हम यूजर से मार्क्स ले लेते हैं। यूजर इंटीजर इनपुट एंड एंटर द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट। राइट, और यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया। तो हमने हमने इसको यहाँ पे इंटीजर में क्यों कन्वर्ट किया, इतना आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा, आई फील दैट। ओके, अब यहाँ पे हमें मार्क्स को चेक करना है। मार्क्स को हमें चेक किस बिहाफ पे करना है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो हमें यहाँ पे ग्रेड देनी है सुपर्ब। ओके, अगर मार्क्स 75 से ज्यादा है तो हमें यहाँ देना है सुपर इंटेलिजेंट। ओके, एंड अगर मार्क्स हमारे 65 से ज़्यादा है तो हमें देना पड़ेगा वेरी गुड। और अगर यहाँ पे फिर मार्क्स हैं हमारे, अब सपोज स्टूडेंट के मार्क्स हैं 50 से ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर देन 50 है, तो हमने यहाँ पे दे दिया गुड। और ग्रेटर देन 40 है तो हमने मार्क्स दे दिए ओके और ओ ओके और अदरवाइज एल्स फेल। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। इसको हम मल्टीपल इसमें कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लगाते हैं लास्ट में। ओके, तो ये भी इस तरह से हमें यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, मार्क्स की हमें ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो सपोज हमने यहाँ पे चेक किया इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, राइट, देन प्रिंट ग्रेड इज सुपर। हम जस्ट सुपर प्रिंट कर लेते हैं, सुपर। ओके, नहीं सुपर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कर देते हैं सुपर से भी ऊपर। ओके, मैं कुछ भी बस लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड अब ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरी कंडीशन चेक होगी। अब दूसरी कंडीशन जब चेक होगी तो वो हमें यहीं से लिखनी है, तो यहाँ पे एल इफ। ओके, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन होगी इफ मार्क्स
is greater than or equal to 75. ओके, तब यहाँ पे प्रिंट करेंगे सुपर सुपर इंटेलिजेंट और elif marks greater than equal to 65, then print very good. Then L elif marks is greater than 50, then हमने कह दिया print good. और elif marks is greater than 40, then we say yes, this is okay. और else यहाँ पे हमने दिया else print marks print fail. ओके, तो ये हमने पूरा एक यहाँ पे इफ एलिफ का एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये चेक करो, ये फॉल्स है तो ये चेक करो, ये फॉल्स है तो ये चेक करो, ये फॉल्स है तो ये चेक करो। और अगर कुछ भी ट्रू नहीं है यहाँ पे ऊपर से नीचे तक तो हमें फिर ये प्रिंट करना है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद की दूसरी कंडीशन, उसका अगली कंडीशन चेक नहीं होगी। सपोज अगर हमने यहाँ पे इसको दिया अच्छा यहाँ पे कोलन भी लगेगा, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं उसके बाद कोलन लगना जरूरी है सब में। ठीक है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। बहुत बार मैं भूल जाता हूँ तो मुझे इसी तरह से याद आता है जब एरर देखता हूँ। राइट, सो अब यहाँ पे हमने मार्क्स दिए कि सपोज हमने 92 मार्क्स दे दिए। अब जैसे ही 92 डालेगा ये कंडीशन जो पहली वाली है यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि कंडीशन 92 देने पे कंडीशन तो पहली भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सारी ट्रू है। राइट, लेकिन जैसे ही वो एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस पार्ट को प्रिंट करेगा, बाकी पार्ट को स्किप कर देगा, प्रिंट ही नहीं करेगा। राइट, बाकी पार्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने 92 दिया तो इसने दिखा दिया सुपर से भी ऊपर। ओके, अभी यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 72। राइट, तो अब इसने यहाँ पे क्या किया, ये कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये वाली कंडीशन इसको ट्रू दिखी, तो ये वाली कंडीशन ट्रू दिखने पे इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है वो उसने प्रिंट कराया और उसकी सब्सिक्वेंट कंडीशंस को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब यहाँ पे हमने मार्क्स दे दिया 37। राइट, तो अब यहाँ पे ये सबको चेक करता हुआ आया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, ये भी चेक किया। जब कहीं ट्रू नहीं मिला तब उसने यहाँ पे इस एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कराया। ठीक है, सर ये लेस देन ले रहा है ना, जैसे हमने 92 डाला तो 90 से ग्रेटर देन हो गया, और और आपने 72 डाला तो 70 नहीं 65 से ग्रेटर देन हो गया, 75 से लेस देन हो गया, 72 हाँ, इन वाली पोजीशन को लेस देन ले रहा है ना। तो देखो जैसे अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब ये है कि 75 से तो लेस ही है ना वो। 65 से तो ज्यादा ही है ना सर फिर। हाँ, जब 65 से ज्यादा है तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू ट्रू हुई, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने ये वाला पार्ट प्रिंट कर दिया। हम्म। ठीक है, जहां पे पहली ऐसे बार तो कंडीशन 50 से भी ज्यादा ही हुई 72 तो। 7, हाँ, मैंने क्या बताया कि जैसे ही पहली कंडीशन इसको कोई भी ट्रू मिली, अब हमने यहाँ पे 72 दिया तो वो यहाँ पे फॉल्स हुआ, वो यहाँ पे भी फॉल्स हुआ, यहाँ पे आके वो कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू हुई वो उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी के जो स्टेप्स हैं वो स्किप कर देगा, फिर बाकी के जैसे प्रिंट हाँ नहीं करेगा। ट्रू कंडीशन मिल जाएगी जैसे ना। हाँ, इस कंडीशन पे वो तभी आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस पे आएगा ही नहीं। ये ये कंडीशन तभी चेक करेगा, 75 वाली कंडीशन चेक करे तभी चेक करेगा जब वो 90 वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अगर 90 वाली कंडीशन ट्रू है तो वो इसको चेक ही नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म, राइट, टू मेक योर एफर्ट इजियर
अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 95 मार्क्स दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सुपर से ऊपर प्रिंट करके यहाँ से निकल जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ये पार्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमने अब सपोज 56 डाल दिया, तो अब यहाँ पे ये यहाँ तक इसने एग्जीक्यूट किया, और यहाँ ये पार्ट एग्जीक्यूट किया। जैसे ही इसको ये कंडीशन ट्रू मिली, इसने ये प्रिंट किया, आगे का स्किप कर दिया, आगे का स्किप वो प्रिंट ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर है? जी सर। अंकित, उत्सव। ओके, ग्रेट। सो तो यहाँ पे इफ एल समझ में आ गया, इफ एल समझ में आ गया, इसके बाद आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ क्या होता है? अभी यहाँ पे इफ एलिफ में क्या कर रहे थे कि जब एक कंडीशन फॉल्स है तब दूसरे पे जा रहा है, राइट? जब दूसरी कंडीशन फॉल्स है तब तीसरे पे जा रहा है। नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के बाद फिर से इफ, फिर से इफ। तो इसमें क्या है, व्हेन, इसमें हो क्या रहा है, व्हेन वन इफ कंडीशन is true, then another condition will be checked. ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी वर डूइंग इन एलिफ। तो एलिफ में जो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन है तब चेक हो रही है जब एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नेस्टेड इफ में दूसरी कंडीशन चेक होगी जब पहली कंडीशन ट्रू है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे किया कि अब सपोज क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एक सिंपल सा नंबर ही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिखा नम इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। ओके, और अब यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, इफ नम मॉड्यूलर, और हमने यहाँ पे दिया सपोज मॉड्यूलर 2। ओके, देन दूसरी कंडीशन चेक होगी, इफ नम मॉड्यूलर 3। ठीक है, फिर इफ नम मॉड्यूलर 5, राइट? एंड देन इफ नम मॉड्यूलर 6। ठीक है, देन प्रिंट दिस number is most acceptable number, राइट? और फिर यहाँ पे हमने इसके एल्स में दिया, एल्स प्रिंट दिस इज नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल। ओके, फिर यहाँ पे ये एल्स हो गया इसका, अब ये इसका एल्स, यहाँ पे हमें कोलन डालना पड़ेगा वरना फिर से एरर देगा। फिर यहाँ पे इसका एल्स प्रिंट दिस इज वेरी मच लेस एक्सेप्टेबल। ओके, एंड देन यहाँ पे एल्स नॉट गुड एट ऑल, एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में इसके लिए एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट वेरी बैड नंबर। ओके, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, बहुत गंदा नंबर है। ओके, वेरी वेरी बैड नंबर, नॉट
इवन द इवन नंबर भी नहीं है, बेकार है। ओके, अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने यहाँ पे दिया सपोज 15। ओके, तो यहाँ पे इसने दे दिया नॉट गुड एट ऑल। अभी ये नॉट गुड एट ऑल क्यों आया? इसने चेक किया सबसे पहले 15 को तो देने में यहाँ पे, हाँ, ये इसका एल्स हो गया, ये इसका एल्स हो गया, इसका एल्स हो गया। ओके, सपोज अगर हम यहाँ पे 11 देते हैं, why it is giving it as most acceptable? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कंडीशन हमने गलत लगाई। कंडीशन तो हमने लगाई नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी वन से ज्यादा होगा तो वो तो वैल्यू आएगी, देगा ही। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी लगाना पड़ेगा। कंडीशन तो अब बनी है ये, यहाँ पे डबल इक्वल टू जीरो, देन डबल इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन बनी डबल इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब यहाँ पे हमने दिया 15, राइट। अब ये क्या कह रहा है? वेरी बैड नंबर, नॉट इवन द इवन नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने इस पे एग्जीक्यूट किया। इस पे एग्जीक्यूट करने पे क्या हुआ? यहाँ पे इसने 2 से डिवाइड किया और 2 से ही ये डिवाइड नहीं हुआ। तो अब ये क्या करेगा? ये आगे की कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, यहाँ तक कुछ भी चेक नहीं करेगा। ये जितनी भी कंडीशन है ये चेक ही नहीं करेगा, सीधे अपने यहाँ से इससे अपने एल्स पार्ट पे आ गया और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। बहुत गंदा नंबर है, वेरी बैड नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगेन, हमने दूसरा नंबर दिया। सपोज यहाँ पे हमने दिया 18। ओके, सो अब इसको हमने यहाँ पे एंटर मारा। अब यहाँ दिस इज लेस एक्सेप्टेबल। अब ये लेस एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि ये इससे डिवाइड हुआ, इससे डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ। तो जैसे ही डिवाइड नहीं हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्स वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट इसने एग्जीक्यूट किया। अब अगर हम यहाँ पे 24 दे देते हैं तो यहाँ पे भी कह रहा है दिस इज वेरी लेस एक्सेप्टेबल, दिस इज लेस लेस एक्सेप्टेबल, क्योंकि फिर से ये 5 पे जाके फेल हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सपोज 60 दे देते हैं, राइट, तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल नंबर। मोस्ट एक्सेप्टेबल नंबर अब क्यों बन गया ये? क्योंकि ये इन चारों से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। एंड वैसे भी 60 को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नंबर माना जाता है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि जितने 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं या 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वो बनाया भी इसीलिए गया बिकॉज 6 कैन बी डिवाइडेड बाई मैक्सिमम नंबर्स फ्रॉम 1 to 59। 1 to 100 में जितने नंबर्स हैं उसमें 60 सबसे ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है। तो 60 कैन बी डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30। टोटल 11 नंबर से डिवाइड हो जाता है 60। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे 60 को कंसीडर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नंबर कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? यस सर। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आगे की कंडीशन तभी एग्जीक्यूट हो रही है जब ये कंडीशन ट्रू है। एलिफ में क्या हो रहा था कि आगे की कंडीशन तब एग्जीक्यूट होती थी जब ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नेस्टेड इफ में ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी, आगे की कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी जब पिछली कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने हिसाब से सिनेरियो ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये चीज कैसे वर्क कर रही है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सो वही चीज हमने यहाँ पे भी दी है। तो आप देख सकते हो पाइथन इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे कंडीशनल कोड है जो एक बार एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो कंडीशन के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद
फिर वो बाहर जाके आगे प्रोसेस कर देगा। कंडीशन फॉल्स है तो भी कोड को स्किप करके आगे प्रोसेस करेगा, राइट। इसी तरह से पाइथन इफ एल्स में क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आगे जाकर उसको प्रोसेस कर देगा। देन एलिफ में जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो उसका पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन चेक करेगा, तब तक चेक करेगा जब तक उसको फाइनल एल्स नहीं मिल जाता, राइट। और इसके बाद फिर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बार ही एग्जीक्यूशन हो रहा है। और नेस्टेड इफ में यही चीज है कि जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक उसके अंदर की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, दैट इज नेस्टेड इफ, राइट। डिफरेंस समझ में आ गया सब में कि what is if, what is if else, what is if elephant, what is if else, and what is nested if. यस सर। ग्रेट ग्रेट। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं पाइथन में लूप्स पे। एंड बिलीव मी, लूप्स आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज। तो यहाँ पे पहले मैं नाम दे देता हूँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और ये सबसे ज्यादा समझने वाला पार्ट है, इसलिए प्लीज फोकस एज मच एज यू कैन। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। मैं अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए नए तो हो सकता है कि इसको समझने के लिए आपको 2 3 4 5 बार रिवाइज करना पड़े। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, बट एक बार आपको समझ में आ गया, देन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, राइट। क्योंकि ये चीज हर प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट हो गया, जहाँ पे हम सिंगल रिपीटिशन ऑफ कोड कर रहे हैं बाय सेटिस्फाइंग एन कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास लूप्स। सो लूप्स में क्या होता है, लूप्स में loops are basically referred as repetition of a certain code till condition is satisfied, or repeat the code till condition is true। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक ये कोड को रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए ये क्या करेंगे, अम, तो इसमें दो तरह के लूप होते हैं। इसमें जो जो यहाँ पे पाइथन में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह के लूप होते हैं। नंबर वन इज व्हाइल लूप, ठीक है, एंड नंबर टू इज फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लूप की बात करते हैं तो लूप इज बेसिकली नथिंग बट रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन कोड टिल कंडीशन इज सेटिस्फाइड और कंडीशन इज ट्रू, राइट। अब इसको हम अगर यहाँ पे देखते हैं, सो बेसिकली सपोज ऑफ फॉर एग्जांपल अभी हमें यहाँ पे एक टेबल प्रिंट करानी है, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक यूजर से सपोज हमने इनपुट ले लिया। तो यहाँ पे नम वेरिएबल में हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू ली, इंटीजर, और इनपुट एंटर द नंबर ऑफ नंबर फॉर द टेबल। हमने टेबल यूजर से कहा कि आप बताओ आपको कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम, यहाँ पे हम प्रिंट, और हमने क्या किया, नम इनटू
1। ओके, ये हमने, सॉरी, यहाँ पे हमने प्रिंट किया num into 1। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको हमने यहाँ पे टेबल के हिसाब से प्रिंट कर दिया, num into 1, num into 2, num into 3, num, ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 1 हम करते जाएंगे, num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पे हमने नंबर चेंज कर दिया, num into 2, num into 3, num into 4, num into 5, num into 6, num into 7, num into 8, num into 9 and num into 10। ठीक है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। अभी यहाँ पे हमने सपोज 7 की टेबल प्रिंट करानी, तो इसने प्रिंट कर दिया 7 sevens are 1, 7 ones are 1, 7 2 is 14, 7 threes is 21, लाइक दैट इसने पूरी 7 की टेबल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया कि हमने बिना लूप के ये इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ये हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। तो क्या ये रिपीट करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे टेबल हम लूप के थ्रू क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल वाया लूप। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने फिर से वही काम किया, ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें नंबर तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे किया काउंट इज इक्वल टू 1, और फिर हमने प्रिंट किया यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे हमने लगाया व्हाइल लूप, व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंट num into count, सिंपल, राइट। और यहाँ पे हमने दिया 7, और ओके, हमने फिर यहाँ पे दिया काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, हमने यहाँ पे दिया 7, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 7 की टेबल फिर से प्रिंट करा दी। तो अभी आपको अगर आपको बनाना हो तो आप कौन सा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बनाओगे या ये प्रोग्राम बनाओगे, कौन सा बनाओगे? सेकंड वाला। सेकेंड वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करनी पड़ रही है, राइट। हमें जो काम यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स में किया, वो काम हमने यहाँ पे 4 ही स्टेटमेंट में कर दिया, राइट। और अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर लेके उसकी वैल्यू बड़ी आसानी से उसकी टेबल प्रिंट करा सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर 78 दिया तो इसने 78 की टेबल भी एज इट इज प्रिंट कर दी, राइट। तो अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये हम कर पाए हैं लूप की वजह से। अब ये लूप क्या है, ये व्हाइल लूप है। अब आप यहाँ पे इंटरैक्टिव भी प्रिंट कराना चाहते हो, थोड़ा इंटरैक्टिव भी प्रिंट करा सकते हो। सो प्रिंट, और आप इस तरह से लिख दो यहाँ पे इनटू, जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट यूज किया था ना, इज इक्वल टू, और यहाँ पे तीसरा हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया नम, यहाँ पे हमने दे दिया डॉट फॉर्मेट, हमने यहाँ पे दिया नम कॉमा काउंट कॉमा नम इनटू काउंट। ओके, इस तरह से भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया सपोज 8 दिया, अभी यहाँ पे दोनों तरीके से वो प्रिंट कर रहा है, देखें, ठीक है। 8, 8 into 1 8, 8 into 2 16। हम पहला वाला हटा देते हैं, अगर यहाँ पे हम पहला वाला हटा देते हैं, इसको यहीं पे दूसरी जगह दूसरा प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये पहला वाला हटा दिया, और यहाँ पे हमने ये दूसरा वाला हटा दिया, यहाँ से हम ये दूसरा वाला हटा देते हैं। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे हमने 8 दिया तो इसका आउटपुट इस तरह से आ गया, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट आ गया 8 into 1 इज इक्वल टू 8, 8 into 2 इज इक्वल टू 16, 8 into 3 इज इक्वल टू 24। इस तरह से यहाँ पे ये पूरा एक इंटरेक्टिव वे में भी पूरा हमें टेबल बना के दे रहा है, राइट। सो
ये हम क्यों कर पा रहे हैं? ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लूप लगाया है। तो लूप में बेसिकली होता क्या है, लूप के तीन कंपोनेंट होते हैं, राइट। ये बहुत ध्यान से समझना सब लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं इसलिए मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि डू नॉट मिस द क्लास, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया प्रोग्रामिंग में कि लूप्स कैसे लगते हैं, यू कैन फाइट विद एनी काइंड ऑफ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली। ओके, सो यहाँ पे लूप के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें नंबर वन होता है, नंबर वन होता है इनिशियलाइजेशन, नंबर टू होता है इंक्रीमेंट कंडीशन, कंडीशन, एंड तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो ये तीन मेन इसके कंपोनेंट होते हैं किसी भी लूप में, दुनिया के किसी भी लूप में जाओगे तो वो तीन कंपोनेंट होते हैं। अब ये तीन कंपोनेंट होते क्या है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है समझने के लिए, राइट। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, अब सपोज आपको कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो उस प्रोसेस का हमेशा कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, करेक्ट। तो सपोज आप, अगर आपको अगर आप यहाँ पे गुड़गांव में बैठे हुए हो और गुड़गांव से आपको जयपुर की तरफ जाना है, राइट। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, गुड़गांव जहाँ पे आप बैठे हुए हो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम बोल बोल सकते हैं सोर्स, राइट, और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, जहां से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, वेयर द प्रोसेस नीड्स टू बी स्टार्टेड, जहां से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे ये लूप प्रिंट कराया था, तो ये नंबर तो हमने एज इट इज ले लिया था, हम कुछ भी करते ये पार्ट तो एग्जीक्यूट होता ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे। अब ये फिक्स है, पहला वाला जो है वो फिक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वेरी कर रही है, ये वैल्यू किस बेस पे वेरी कर रही है, ये वैल्यू वेरी कर रही है यहाँ पे इसके बेस पे, यहाँ पे जो हमने 1 2 3 4 ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसके बेस पे ये वैल्यू वेरी कर रही है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप, ठीक है, जहां से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। आपकी जो लूप की प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। दूसरी चीज आती है इसमें कंडीशन। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द डेस्टिनेशन, राइट, डेस्टिनेशन पॉइंट। अब इसको हम जनरल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि अब मान लो आपको गुड़गांव से जयपुर जाना है, राइट, आप गुड़गांव में खड़े हुए, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपको रुकना कहाँ पे है, आपको रुकना है मतलब कहाँ पे अपनी प्रोसेस टर्मिनेट करनी है। तो आपको जयपुर जाना है, तो जैसे ही आप जयपुर में पहुंचेंगे, जयपुर में आपकी जो भी जगह है उस जगह पे पहुंचेंगे, तो वो आपका टर्मिनेशन पॉइंट हो जाएगा, राइट। वहां से आपको लूप को टर्मिनेट करना होगा, आपकी प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा, अदरवाइज फिर वो और आगे चली जाएगी, राइट। यहाँ पे बड़ा बिल वाले घोड़े के एग्जाम्पल को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जैसे ही वहां पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा, इमिडिएटली वहां पे प्रोसेस ब्लॉक होनी चाहिए, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दोज दैट। ओके, सो दिस इज द डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारी प्रोसेस यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक गई, 10 तक, और 10 के बाद इसने उसको टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे 10 तक क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि भाई 10 तक ही जाना है, हमें आगे नहीं जाना है, राइट। सो बेसिकली वी कैन से एंडिंग पॉइंट वेयर द प्रोसेस गेट्स टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली, राइट।
जहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली बिना किसी इंटरवेंशन के इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाती है। दैट इज योर एंडिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है। तो अब हमें इन दोनों चीजों से पता लग गया कि हमारी प्रोसेस है, हमारा लूप है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा। राइट। चलो ये तो पता लग गया भाई, मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव से मुझे जयपुर जाना है। जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा वहां पे रुक जाऊंगा, या जयपुर में हमारा कोई रिलेटिव रहता है, या जयपुर में मेरा कोई फ्रेंड रहता है, या जयपुर में कॉलेज रीयूनियन के लिए बुलाया हुआ है। इट कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ दैट, राइट। तो बेसिकली अल्टीमेट चीज क्या है कि आप जब जयपुर पहुंचे तो जयपुर पहुंचने के बाद आपको प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक आता है, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये क्या करता है, ये आपको डिनोट करता है कि चलो आपको गुड़गांव से जयपुर जाना है। आपको गुड़गांव से जयपुर जाना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए रास्ता कौन सा ले रहे हो आप गुड़गांव पहुंच के और वहां पे हाईवे पे आपने जो रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है वो आपने ले लिया, तो क्या कभी आप जयपुर पहुंच पाओगे? नहीं, जयपुर कभी नहीं पहुंचोगे। जयपुर कभी आएगा ही नहीं वहां पे। राइट। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर बताना भी है कि आपकी जो प्रोसेस है वो कैसे रन होगी। राइट। तो इंक्रीमेंट से रन होगी या डिक्रीमेंट से रन होगी, कैसे रन होगी। सो द पाथ टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के लिए आपने यहाँ पे रास्ता कौन सा लिया है? तो सपोज यहाँ पे हमने काउंट इज इक्वल टू 1 स्टार्ट किया था। राइट। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा टर्मिनेशन पॉइंट था। लेकिन तो ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन, और वी कैन से प्रोसेस विल बी terminated when value of count will be greater than 10। जैसे ही वैल्यू की जब काउंट की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा ये प्रोसेस आता है, दिस इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम इसको मतलब बोलेंगे इंक्रीमेंट। ऐसे ही वैल्यू को कम करना है, डिक्रीज करना है, हम उसको बोलेंगे डिक्रीमेंट। राइट। सो बेसिकली ये जो तीन चीजें हो गई हमारी, इनिशियलाइजेशन, डेस्टिनेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। इन तीनों चीजों से मिलके लूप बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। उसका मतलब क्या होगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू वन का मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो हर बार काउंट की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी। तो पहली बार में वन, पहली बार में आई वन, दूसरी बार में आई टू, फिर तीसरी बार में आई थ्री, चौथी बार में आई फोर, पांचवी बार में आई फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, देन एट, देन नाइन एंड देन फाइनली 10। और 10 के बाद अब क्या होगा, 10 के बाद अगर हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू चेक करते हैं, काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्रिंट काउंट। राइट। तो यहाँ पे हमने दिया सिक्स और यहाँ पे यहाँ पे काउंट की वैल्यू आ गई 11। राइट। और जब यही वैल्यू 11 हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अब 10 से ज्यादा हो गया। राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये इस लूप को टर्मिनेट कर देगा। क्लियर है ये छोटी सी चीज? यस सर। ठीक है। तो इसमें एक अंकित कुछ कह रहे हो आप? ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे, सो अब यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं वैल्यू। सपोज अभी हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, हमें रिवर्स टेबल प्रिंट करानी है, रिवर्स टेबल
सो यहाँ पे फिर से हमने नंबर लिया, रेव नम हमने करके नंबर ले लिया, इंटीजर इनपुट इनपुट एंटर द नंबर फॉर रिवर्स टेबल। ओके, अब यहाँ पे अब हमें रिवर्स टेबल प्रिंट करानी है। यहाँ पे तो हम टेबल 1 से लेके जा रहे थे 10 तक लेके आ रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, 10 से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके आना है। तो हमने यहाँ पे काउंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, काउंट इज इक्वल टू 10, और फिर हमने यहाँ पे दिया व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन हमने यहाँ पे दिया प्रिंट स्पेस, नहीं यहाँ पे प्लेस होल्डर इनटू सेकेंड प्लेस होल्डर इज इक्वल टू थर्ड प्लेस होल्डर एंड डॉट फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने दिया रेव नम कॉमा काउंट कॉमा रेव अंडरस्कोर नम इनटू काउंट। ओके, और यहाँ पे हमने दिया, अब यहाँ पे हम करेंगे काउंट माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट माइनस इज इक्वल टू 1 हमने दिया, जिससे क्या होगा कि वैल्यू 1 बाई 1 डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे लेस देन 10 लगाया था, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 1, जस्ट रिवर्स। राइट, अब हमने प्रिंट कराया 9, तो यहाँ पे देखो 9 की पूरी टेबल प्रिंट होके आ गई। इतना क्लियर है सबको? जी सर। ओके, ठीक है। सो अगर इतना समझ में आ गया है, सो विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे फॉर यू टू स्टार्ट विद। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप सारी चीजें एक दिन में समझ जाओगे। हम इसको कल फिर से देखेंगे और कल फिर से इसको हम एक बार रिवाइज करके इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स क्लास में भी करने वाले हैं और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी एग्जाम्पल्स दूंगा। राइट, सो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस। मैं कुछ सिंपल सिंपल 10 क्वेश्चंस आज, टुडे इज थर्सडे, या सो आई विल सेंड यू सिंपल सिंपल 10 क्वेश्चंस, जिससे आप अपनी इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, लूपिंग की। राइट, एंड देन विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑन मंडे, एंड विल सी कि कैसे ये प्रोसेस होता है। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डू नॉट स्किप। आप